So have a function is basically a box, a magical box. Let us say we are putting something x, आपण याच्यामध्ये x टाकतो, we are putting some x here and we are getting out some y. Okay, so this f of x is actually a function or a defined relation from x to y. So there can be some limits on what all values of x this f of x can take. So that limits or the values that this f of x can take are called as domain, and there is a range. मतलब मेरा जरूरी ऐसा नहीं है कि मेरा f of x जो है वो सारे वैल्यूज देगा मुझे, ठीक है? तो there are some restrictions on y or the number of values that y can give or y can have, and this is called as the range. So the y has something called as range, and x is basically the input values that f of x we can give. Okay, so यहाँ पे if we have to go back to the textbook, तो हम लोगों ने काफी सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है? एंड उन्होंने डेफिनेशन क्या दिया है फंक्शन का, ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शंस. और if you basically go back to definition, we will see that function f from a set A to B, okay, is a relation which associates for each element x in A a unique exactly one element y in B. Okay, so if such a function exists, A is called the domain of f and B is called the codomain of y. Codomain or the y, range of f. Okay. So function is called, उन्होंने क्या बोला, एक मैपिंग है, and they are using something called as relation. relation मतलब कि क्या है कि x और y के बीच में relation क्या है, तो मुझे f बताएगा कि वो क्या relation है करके, ठीक है? So this is how they have defined the f. Okay, yes, that f is also called as a map or a transformation. Now there are different types of functions. I'm not going to go much this thing, okay, because you have already covered this thing. We have to go and solve. हमारा मेजर फोकस यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स कर सके, प्रैक्टिस कर सके, एंड यहाँ पे उसके ऊपर डाउट सॉल्व कर सके, ठीक है? सो 1 to 1 मतलब क्या है? फॉर ईच वैल्यू ऑफ इन द ए, फॉर ईच वैल्यू इन ए, ओके, देयर इज only one value in B. That is called as 1 to 1. That is called as 1 to 1 mapping. Okay, fine. And yes, and this is called as injective function, 1 to 1 or injective. So मतलब मेरा हमेशा से यही बोलना रहता है कि don't go by these terms, ठीक है? तो जितना तुम कम याद रखोगे और जितना तुम दिमाग में कंसेप्ट ज्यादा फिट करोगे, that is better. Okay, now we also have onto function. Okay, onto function is said to be onto for every element in y there is an image in x or there is an image in a. Okay, that is called as an onto function. उन्होंने अलग अलग टाइप की दिया है कि भैया 1 1 हो सकता है, onto नहीं होगा, onto है 1 1 नहीं है, ठीक है? फाइन, neither onto neither 1 1, ऐसा अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है? Do you want me to take any of these things? Right now you want to understand some concepts. मुझे अभी बताओ, राधा, मानस. yes, What do you want me to take? Yes, sir. क्या क्या चीज चाहते हो तुम, मैं क्या लूँ करके? राधा, you had some problems here, so मुझे बताओ कि फंक्शंस में क्या नहीं समझा तुम. हेलो Yes, sir. yes, sir. राधा, मुझे बताओ क्या नहीं समझा है तुमको फंक्शंस चैप्टर में? Sir, can you give me the overview? Because I don't know anything about this chapter. Okay, मैंने अभी ओवरव्यू दिया तुमको, ठीक है? हाँ सर. तो अभी इसमें जो मैंने समझा है उसमें कोई डाउट है? नहीं, पर सर मतलब onto और
मतलब डोमेन का थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, थोड़ा मतलब कंसेप्ट? ठीक है। सो अब लेट अस से मेरे पास में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम है एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, करेक्ट? यस और नो? आई एम टेकिंग Yes. यस। एग्जांपल। ओके, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या कि जिसमें मेरा एफ नॉट डिफाइंड होगा? कोई ऐसा एक्स का वैल्यू है क्या जहां पे ये मेरा एफ ऑफ एक्स नॉट डिफाइंड है? नहीं. नहीं। For every value of x, this x square exists and x square minus 3 exists. Yes. Yes, no, Radha? ठीक है? यस सर। So the domain of this function is what? Real numbers, all real numbers. I am not talking about complex numbers or imaginary numbers. Okay? ठीक है? So the domain is all the real numbers. What is real number? Real number is of the form p by q, where q is not equal to 0. p is real and q is real. Rational और real में क्या difference है? Rational number is actually a subset of real numbers. ठीक है? Irrational number is also a subset of real numbers. ये चीज ध्यान में है या नहीं है? √2 is irrational. 1 by √2 is also irrational. Okay, but both are real. Both are real. 7 by 9 is a real number. ठीक है? 7 is a rational number. 9 is a rational number, and 7 by 9 is also a rational number. 7 by 9 is not irrational number. Okay? ठीक है? Yes. 7 by 9 is a Yes. rational number. 1 by √2 and 1 by √2, these both are rational numbers, but all these three are what? Real numbers. ठीक है? Real numbers. Yes. रियल नंबर में हमेशा मेरा जो डिनोमिनेटर रहेगा वो मेरा कभी भी 0 नहीं रहेगा. ठीक है? Is also of the form. So this can be √2 by √3. Okay? √3 is not equal to 0. Correct? So this is in total a real number. ठीक है? कोई डाउट है इसमें? नहीं. So what I'm saying is कि मेरा डोमेन जो है वो रियल नंबर इसलिए है. डोमेन मतलब क्या है? What all the values of x that can be taken. Okay? तो मैं कोई भी वैल्यू ऑफ x डालूं, this will always be a real number. मैं कोई भी वैल्यू ऑफ x डाल सकता हूँ, राइट? फ्रॉम -∞ to ∞ कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, राइट? है कि नहीं? मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ ना, यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा ही, राइट? है कि नहीं? हाँ। कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा मुझे, राइट? अब मुझे बताओ कि ये मेरा डोमेन हो गया. ठीक है, अब ये मेरा डोमेन हो गया. रियल नंबर इज द डोमेन. डोमेन मतलब क्या? फ्रॉम -∞ to ∞, मतलब रियल नंबर्स अगर मेरा डोमेन है, सो माय डोमेन इज फ्रॉम -∞ to ∞. ठीक है? नाउ व्हाट इज द रेंज? व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट फंक्शन? रेंज मतलब व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू. सो राधा, प्लीज नाउ टेल मी व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू. मिनिमम इज -∞. -∞ जाएगा पक्का? आर यू श्योर? रेंज ऑफ f of x हाँ। कहाँ जाएगा? कैसे जाएगा? माइनस -∞ जाएगा कि नहीं जाएगा? माइनस, जाएगा। बताओ कौन सी वैल्यू के लिए जाएगा x की? नहीं सर, इन्फिनिटी के लिए नहीं जाएगा सर वो. हेलो. हाँ, मैं सुन रहा हूँ. इन्फिनिटी के लिए नहीं जाएगा. इन्फिनिटी के लिए नहीं जाएगा कि -∞ के लिए नहीं जाएगा? मतलब अब हम x की कौन सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, वो हाँ, चाहे कोई भी डाल सकता हूँ. जब. तो मुझे हाँ हाँ. f of x का मिनिमम वैल्यू क्या है मुझे बताओ अभी. राधा, फिर से बताओ मुझे. ये जो x स्क्वायर है, ये जो x स्क्वायर है मेरा, ये मेरा x स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू क्या है मेरी? जो मेरी लीस्ट वैल्यू है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, -3 तो कांस्टेंट है, राइट? तो जो मेरे x स्क्वायर की जो हाँ। लीस्ट वैल्यू है, तो वो मैं अगर डाल दूंगा
तो फिर मेरा एफ ऑफ एक्स का लीस्ट वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मुझे एक्स स्क्वायर का मैंने लीस्ट वैल्यू हाँ डाला, निकलो। तो एक्स स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ अपने नोटबुक में। अपने ही नोटबुक में बनाओ, ठीक है? बताओ क्या है लीस्ट वैल्यू अगर मैं यहाँ पे एक्स प्लॉट करता हूँ और यहाँ पे वाई प्लॉट करता हूँ, ठीक है? एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, मैं एक्स स्क्वायर ही पकड़ रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे हाँ बताओ अभी हाँ कैसे बनेगा, मेरा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या है? जीरो पे जीरो ही मतलब। जीरो ही है ना? वाई इज इक्वल टू जीरो ही है, हाँ ठीक है? हाँ। वन डाला, वन डाला क्या मिलेगा मुझे? वन मिलेगा। वन। हाँ, टू डाला क्या मिलेगा? फोर मिलेगा। और नाइन हाँ मिलेगा। माइनस वन डाला क्या मिलेगा? वन। माइनस वन वन मिलेगा। माइनस टू डाला क्या मिलेगा? फोर। फोर। माइनस थ्री डाला क्या मिलेगा? नाइन। एंड इज इट समथिंग लाइक दिस? यही है ना? हम्म। बाकी नहीं? हाँ हाँ हाँ, तो मुझे हाँ। बताओ हाँ। value क्या है एक्स स्क्वायर की? मिनिमम जीरो। राधा, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू? जीरो। पक्का? हाँ हाँ। 100%? 100% ना? जीरो ही है ना? क्या और कुछ है? नहीं सर जीरो ही है। ओके, ठीक है। सो द लीस्ट वैल्यू इज जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री की लीस्ट वैल्यू क्या है फिर? मैंने अभी बोला ना, अभी बोला कि जब ये लीस्ट आएगा तो तब ये भी लीस्ट आएगा ना, ये तो कांस्टेंट ही है, तो राइट? हम्म। माइनस। हाँ। हाँ हाँ, तो तो फिर माइनस थ्री। लीस्ट वैल्यू क्या है? माइनस थ्री है। और मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर की फिर इन्फिनिटी होगी ना। हाँ, तो फिर सो व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स? देन इट इज माइनस थ्री माइनस थ्री टू इंफिनिटी। टू इन्फिनिटी। इज इंक्लूडेड, ओके? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि माइनस थ्री इज इंक्लूडेड, ठीक है? समझ गया ना? और ये नॉट इंक्लूडेड, हाँ हाँ minus 3 is included. So this is the range of f of x. Minus 3 to infinity is the range of f of x. And this is the input or the domain of f of x. मतलब मैं x की मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ रियल नंबर्स में, लेकिन मेरा जो रेंज है वो माइनस थ्री टू इन्फिनिटी के बीच में रहेगा। अभी कोई डाउट है क्या इसमें, राधा? नहीं सर। हाँ, रेंज और डोमेन का समझ गया तुमको? हाँ सर। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि इस मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ तुमको, f of x is equal to x square. Is it a one to one function? Manas, can you tell me, is it one to one or no? नो। पक्का? राधा? पक्का। राधा? यस सर। अरे यस नहीं यार, वन टू वन है या नहीं बताओ मुझे। वन टू वन है क्या? वन टू यस वन का सर। क्या मतलब है? वन टू वन का क्या मतलब है? मतलब जो मतलब लेट अस से ये मेरा x का है मैपिंग और ये मेरा y का मैपिंग है, तो ठीक है? तो मैं अगर सपोज y में कोई भी वैल्यू उठाता हूँ, लेट अस से मैंने फोर उठाया, ठीक है? तो मुझे इसके लिए y इज इक्वल टू फोर के लिए x का सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा, ऐसा है क्या? ऐसा है? हाँ तो मतलब वन टू वन ही है। वन टू वन है। है? पक्का? जस्ट वन मिनट, गिव मी अ हाँ मिनट।
हाँ, क्या बात कर रहे हो राधा? y इज इक्वल टू 4, x के कौन सी वैल्यू के लिए आएगा? 2. और और अरे थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ यार राधा, थोड़ा सा तो लगाओ। -2 भी डालोगे तो भी आएगा ना 4। हाँ. हाँ हाँ. माइनस हाँ. हाँ, तो फिर 1 to 1 है कि नहीं है? नहीं है. वही क्यों नहीं है? 1 to 1 का क्या मतलब है? 1 to 1 का क्या मतलब है? मतलब जो हाँ, एक रिपीट नहीं होगा, मतलब वैल्यूज सेम. कौन सी वैल्यू रिपीट नहीं होगी? यानी कि y में अगर सपोज मेरे पास 4 आ रहा है, ठीक है, तो अगर सपोज मैं x में इसका मैपिंग लेता हूँ, x के में इसका एक ही मैपिंग मिलेगा, ठीक है, लेकिन मुझे क्या क्या मैपिंग मिल रहा है? 2 और -2 दो मैपिंग मिल रहा है ना, मतलब इट इज नॉट 1 to 1 फंक्शन, हाँ. राइट? है कि नहीं? हाँ. इट इज many to 1 function. many one. Many values of x are giving me the same value of y. Yes or no? Many values of हाँ. x are giving me the same value of y. इसलिए वो many to one function है and it is not 1 to 1 function. समझ में आया? हाँ. कोई डाउट है अभी इसमें? नहीं. पक्का? हाँ. अब f of x is equal to x minus 3. Is it 1 to 1? Radha, you only tell me. पहले तो x minus 3 का ग्राफ प्लॉट करो. x minus 3 का ग्राफ कैसे रहेगा? x is equal to 0 पे -3 है, ऐसा रहेगा ग्राफ, है कि नहीं? हाँ. तो स्लोप पॉजिटिव है ना? स्ट्रेट लाइंस तो पढ़ा है तुमने, हाँ. पॉजिटिव है, स्लोप इज 1, तो ये 0, -3 है. अब इज इट 1 to 1 और नो? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इन f of x we have only one value in x और multiple values in x. मतलब ओनली multiple वन वैल्यू. कहाँ पे है बताओ मुझे, मल्टीपल वैल्यूज कौन से दे रहे हैं मुझे? y इज इक्वल टू लिया मैंने, तो x के मेरे को दो वैल्यू मिलते हैं कि एक ही वैल्यू मिलता है? एक ही वैल्यू मिलेगा. तो 1 to 1 है, many to 1 फंक्शन है ये? 1 to 1 है. पक्का? हाँ. हाँ. अब मुझे बताओ f of x इज इक्वल टू साइन x, ठीक है? ये 1 to 1 है कि many to 1? अभी इसमें मैं x का जो डोमेन है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ, इट इज -∞ टू इंफिनिटी. हाँ, फिर अब बताओ साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, ठीक है, ऐसा ऐसा है, ठीक है, ओके. मल्टीपल वैल्यूज ऑफ y है हाँ. फॉर मेनी, फॉर, है कि नहीं? मल्टीपल वैल्यूज ऑफ y है और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, है कि नहीं? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी गेट मल्टीपल वैल्यूज ऑफ साइन x, राइट? मैं साइन x हाँ. एक्सिस π/2 डाला तो भी मुझे सेम मिलेगा, है कि नहीं? मैं हाँ. 5/2 डाला तो भी मुझे सेम मिलेगा, ठीक है? यस और नो? हाँ. है कि नहीं? यस. हाँ. अभी हाँ. इतना सिंपल चीज नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये 1 to 1 है या मेनी टू 1 है? मैनी टू वन है. फिर अभी मैं दूसरा लेता हूँ. लॉगिक्स का ग्राफ पता है तुमको? लॉगिक्स का ग्राफ पता है क्या? नहीं सर. ठीक. मॉड एक्स का ग्राफ पता है तुमको? मॉड एक्स का ग्राफ पता है? नहीं. मानस तुमको पता है मॉड एक्स का ग्राफ? नहीं. मॉड एक्स का ग्राफ नहीं पता तुमको? ऐसा नहीं. ऐसा ये मॉड एक्स का ग्राफ नहीं पता तुमको? हाँ मतलब देखा है पर ऐसा पता नहीं है. ओके. मॉड एक्स क्या करता है? मॉड फंक्शन करता क्या है?
मतलब कौन सी नेगेटिव वाली वैल्यू को पॉजिटिव करना है। हाँ ठीक है, तो ये मैनी टू वन है हाँ कि वन टू वन है? मैनी टू वन है। मेनी टू वन होगा। हाँ, फिर अभी मैं दूसरा लेता हूँ cos x। मैनी टू वन है कि वन टू वन है? मैनी टू वन है। मेनी टू वन। के लिए हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि मेरी रेंज जो है वो मैं माइनस, मतलब डोमेन जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ले रहा हूँ। बिटवीन जीरो टू पाई, between 0 to pi it is a one to one mapping, this वन function. टू वन। Similarly मुझे mod x में भी मुझे डोमेन स्पेसिफाई करना पड़ता है। अगर मैंने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बोला सो दिस इज मैनी टू वन फंक्शन, लेकिन मैंने अगर 0 to 1 बोला, अगर मैंने डोमेन 0 to 1 स्पेसिफाई कर दिया 0 to 1, यहाँ पे तो 1 to 1 ही है ना, है कि नहीं? लेकिन अगर मैं हाँ माइनस वन टू हाँ वन लिया, माइनस वन टू वन अगर मैंने डोमेन लिया, सो इन दैट डोमेन इट इज मैनी टू वन फंक्शन। सो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, दे विल ऑलवेज गिव यू द डोमेन फॉर द फंक्शन। तो मैं कौन सा डोमेन देख रहा हूँ एक्स के लिए, ठीक है? हाँ। सो नाउ यू हैव आस्क्ड वन मोर थिंग, दैट इज ऑन टू। ऑन टू क्या होता है? ऑन टू इज समथिंग वेयर यहाँ पे फॉर ईच वैल्यू इन द वाई देयर इज अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन एक्स, है कि नहीं? फॉर ईच वैल्यू इन वाई देयर इज अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन एक्स। सो तो मैं अगर सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मैंने लिया, तो अगर मैंने y इज इक्वल टू 9 लिया या y इज इक्वल टू 24 लिया, ठीक है, सो देयर इज अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x, राइट? है कि नहीं? यस और नो? 24 यस यस। तो मेरे को x का कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगा ही, राइट? है कि नहीं? हाँ। यस और नो? हाँ। तो सिमिलरली वो बोल रहे हैं कि ऑन टू फंक्शन वो होते हैं जहां पे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज एन x डिफाइंड, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज एन x डिफाइंड। ओके, हाँ। फिर एग्जांपल अगर समझना है तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है। अभी जैसे यहाँ पे एक इमेज 5 दिया हुआ है, ठीक है, एक इमेज 5 दिया है जिसका कोई मैपिंग ही नहीं है, समझ में है? ए में कोई मैपिंग हाँ। नहीं है, सो दिस वी कैन नॉट से दैट दिस फंक्शन इज अ ऑनटू फंक्शन, ठीक है? हाँ। ये डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है? अच्छा, मेनी वन फंक्शन ऑन टू हो सकता है क्या कभी। मिनिमम फंक्शन ऑनटू हो सकता है ना, क्योंकि फॉर एवरी मैपिंग इन वाई हाँ हाँ। देयर इज अभी मुझे वही पता है ना, एक्स स्क्वायर एक मैनी टू वन फंक्शन है, ठीक है, साइन एक्स एक मैनी टू वन फंक्शन है, लेकिन हाँ लेकिन मेरे पास में अगर सपोज मैं साइन एक्स का फंक्शन लेता हूँ, उसका रेंज मुझे माइनस वन टू वन दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं साइन हाँ एक्स में हाँ अगर ग्राफ लेता हूँ तो मुझे कोई ना कोई तो वैल्यू मिलेगा ही ना एक्स का, है कि हाँ नहीं? हाँ। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय ऑन टू फंक्शन, ठीक है? ऑन टू, और वी यस कैन से यस। सच, बट आई एज आई सेड आई डोंट वांट यू टू गेट इनटू थियरी दैट मच। नाउ लेट अस टेक सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, ठीक है? उन्होंने बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस बताए हैं यहाँ पे, ओके? आई एम नॉट श्योर कि तुमको कितना पता है कितना नहीं पता है। कैन यू टेल मी तुमको कितने फंक्शंस तुमको पता है, ग्राफ्स पता है, कितने नहीं पता है? बिकॉज इट इटसेल्फ इज बेसिकली अ यू नो अ ह्यूज टॉपिक, काफी बड़ा टॉपिक है ये। इफ आई एक्सपेक्ट कि भैया तुमको log x एंड mod x दोनों के ग्राफ्स पता है, ओके, दैट्स अ होमवर्क फॉर यू नाउ। इफ यू डोंट नो mod x का ग्राफ, ठीक है, mod x का ग्राफ मैंने अभी बताया, ठीक है? नाउ यू हैव टू प्लॉट हाँ मी होमवर्क एज mod x minus 3 का ग्राफ, ओके, एंड यू हैव टू प्लॉट मी x cube minus 3 का ग्राफ। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। यस सर। x cube minus 8 पकड़ लो, not 3, 8। so this is homework number 1, this is homework number 2, ठीक है? तो डाउट है इसमें? mod x minus 3 का ग्राफ प्लॉट करना है और x cube minus 8 का ग्राफ प्लॉट। कैन यू ड्रॉ मी द ग्राफ ऑफ x cube ओनली? सिर्फ x cube का ग्राफ कैसा रहेगा मुझे बता सकते हो?
मुझे बता सकते हो कि एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा रहेगा? पहले 0 पे 0 रहेगा, फिर हाँ, 1 का 1 पे 1 रहेगा, 1 माइनस, 2 पे 8 रहेगा, हाँ 3 पे 9 8 रहेगा। रहेगा, हाँ, 9 रहेगा, माइनस में क्या रहेगा? हाँ -1। माइनस पे -1। माइनस होगा वो, हाँ, -1। माइनस। ठीक है, ऐसा ऐसा हाँ हाँ ऐसा रहेगा ग्राफ इसका। हाँ। हाँ एक्स क्यूब का ग्राफ है, राइट? वाई हम्म, इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। ओके। हाँ, अब मुझे बताओ लॉग एक्स का ग्राफ। लॉग एक्स का ग्राफ, लॉग एक्स का ग्राफ, थोड़ा सा मुझे हेल्प चाहिए। लॉग एक्स मतलब बेस में 10 ले रहा हूँ। ओके, आई एम टेकिंग बेस्ट बेस एज 10। डू यू थिंक दीज आर इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट? क्या लगता है तुमको? इम्पोर्टेंट सर। ओके, सो इफ log x इज इक्वल टू y है मेरा, ठीक है, सो x इज इक्वल टू e रेज टू y, करेक्ट? यस और नो? तो मेरा मतलब यस 10 है, तो मैं दिस इज 10 रेज टू y, दिस इज 10 रेज टू y। ओके, तो मैं y का कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ या क्या? y तो मेरा कुछ भी रह सकता है, राइट? लेकिन मेरा x जो है हाँ ऑलवेज हैज टू बी ग्रेटर देन 0, राइट? यस और नो? यस यस। है कि नहीं? क्योंकि मेरा 10 रेज टू एनी नंबर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट? है कि नहीं? मेरा जो डोमेन है इट ऑलवेज हैज टू बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि फॉर 10 रेज टू y इज इक्वल टू 0 इज नॉट डिफाइंड फॉर मी। 10 रेज टू y इज इक्वल टू 0 इज नॉट डिफाइंड, मतलब y जो है वो मेरा क्या रहेगा? y मेरा मतलब ये सोचो कि 10 रेज टू y इज इक्वल टू 0 है, ऐसा अगर है तो इट इज लाइक 1/10 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 0, और 10 रेज टू पावर सम नंबर इज इक्वल टू 0, ऐसा ही है ना ये? सो दिस हैज टू बी अ वेरी वेरी लार्ज नंबर, राइट? ये बहुत बड़ा बड़ा नंबर चाहिए ना ये डिनोमिनेटर में, तब जाके ये 0 बनेगा ना, है कि नहीं? हाँ हाँ तो माई a इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी और माई y इज अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी। सो उस केस में ये यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, ठीक है, इधर से स्टार्ट होगा, ठीक है। फॉर y, फॉर x इज इक्वल टू 0, फॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू व्हाट? सो फॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू व्हाट? 0। 10 रेज टू 0 0 इज इक्वल टू 1, राइट? तो ये यस ऐसा रहेगा ग्राफ इसका, ठीक है। सो द डोमेन इटसेल्फ, जो डोमेन है लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट डिफाइंड का यही मतलब है कि एनी नंबर रेज टू द रियल नंबर is always a real number or a positive number, not a negative number, ठीक है? So it goes up to infinity. So the domain is what? From 0 to infinity. 0 is not included obviously, and the range is from minus infinity to infinity. माइनस इन्फिनिटी जा रहा है ना ये y, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है ना यहाँ हाँ पे, और यहाँ पे हाँ। इन्फिनिटी, हाँ यहाँ पे इन्फिनिटी जा रहा है। सो y इज गोइंग, मतलब log x इज इक्वल टू y अगर मैंने लिया बेस 10, ठीक है, तो ये ऐसा रहेगा। देर आर मेनी मोर कॉम्प्लेक्सिटीज, ओके, इतना सिंपल नहीं है फंक्शंस। फंक्शंस बेसिक तुम्हारा स्टार्ट होता है यहाँ से, इतना सिंपल नहीं है। देर कैन बी मेनी मोर बेसिस। हम लोग नेचुरल लॉग एक्स का भी प्लॉट करते हैं, है कि नहीं? नेचुरल लॉग हम लॉग 2 का भी प्लॉट करते हैं, है कि नहीं? यस और नो? यस सो अलग अलग लॉग्स के अलग अलग ग्राफ्स हो सकते हैं, ठीक है। log base 2x ग्राफ अलग होगा। सो अनदर टेक अनदर होमवर्क, ओके। अभी बहुत सारा होमवर्क मिलेगा तुमको, ठीक है। यू हैव टू प्लॉट मी द ग्राफ्स ऑफ log x base you know 2 एंड नेचुरल log x, इन दोनों का ग्राफ कैसा रहेगा मुझे बताना है। सो नेचुरल log में e रहता है, बेस e इज इक्वल टू 2.7 है, यस और नो, है कि नहीं? तो मुझे ये दो ग्राफ्स में डिफरेंस क्या रहेगा, ये मुझे चाहिए कल, ठीक है।
ओके। सो अभी तुम्हारे पास 3 होमवर्क है, ठीक है। ओके, सो लॉग का हमने देख लिया, मॉडेस का देख लिया, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास में? अब क्या बचता है? हेलो, यस सर। क्या कौन सा फंक्शन बचा है? ओके, दिस इज अनदर एग्जांपल दे हैव गिवन फॉर 1 by x। ओके, 1 by x का ग्राफ जो है, अगर हम लोग इस तरफ गए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गए, सो एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, ग्रेटर देन 0, और नेगेटिव में गए तो वहां पे एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। बट अगर 0 से थोड़ा सा भी पास रहता है तो ये इन्फिनिटी जाता है, राइट। 1 by हाँ हाँ 0.00000 कुछ तो भी मैंने लिया वैल्यू, तो ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, एंड दिस इज अप्रोचिंग टू 0। दिस एफ ऑफ एक्स इज अप्रोचिंग टू 0 व्हेन एक्स वैल्यू इज इंक्रीजिंग। समझ में आया? मेरे कर्सर से समझ में आ रहा है क्या? यस। दिस इज हाउ यू कैन रीड द ग्राफ्स, है कि नहीं? एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू आर लर्निंग दिस, राइट। ये पहले भी तुम कर चुके हो, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है फिर अभी? डोमेन इज ऑल्सो रियल नंबर्स माइनस 0 एंड रेंज इज ऑल्सो रियल नंबर्स माइनस 0। समझ में आया वो क्या बोल रहे हैं? ओके, यस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ किया है कि नहीं किया है कभी? नहीं क्या क्या? नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ नहीं किया है, राधा? नहीं सर। अच्छा, ओके। So let us take a 10 minutes break. We'll be back, okay, and we'll take that time this particular ordered equations graph. Okay, fine. यस यस। Yeah. Let us take a 10 minutes break. Just be back by 8:30. Okay. So simple. There are some basic functions that they expect you to know the graphs, or you can plot the graphs at least. There is something called as constant function. Okay. So for any value of x, this f of x is constant. So इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, right? It will be parallel to the x-axis. So if f of x equal to k, तो y is equal to k पे एक horizontal line बनेगा, okay? ठीक है? यस। Then there is called as identity function, or f of x equal to x. It will be a simple line with slope 1, or slope tan theta is equal to 1, which is passing through the origin. Yes or no? ठीक है? Yes. हाँ, इसका भी जो अभी अगर एक कांस्टेंट फंक्शन लिया तो इसका डोमेन क्या है मेरे पास में? इट इज सिंपल रियल नंबर्स, बट इसका जो रेंज है दैट इज ओनली फिक्स्ड, दैट इज 2, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, ठीक है। इसका भी रेंज क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एंड डोमेन इज ऑल्सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सो डोमेन क्या होता है कि फॉर व्हाट वैल्यू द एक्स और द एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, ठीक है। फिर है पावर फंक्शन, ठीक है। पावर फंक्शन में अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, ठीक है। फिर देयर इज अ क्यूबिकल फंक्शन, देन देयर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, okay, and then in polynomial function we start with basically linear function which is a simple straight line, जिसका हमने ऑलरेडी प्लॉटिंग देख चुके हैं स्ट्रेट लाइंस में वगैरह, और वी विल बी एबल टू सी, मतलब स्ट्रेट लाइंस का प्लॉटिंग तुम देख चुके हो तुम्हारे 11th एंड 12th में, और हम लोग इस वाले अभी इसमें एक्सक्लूसिवली कुछ स्टडी नहीं कर रहे हैं। देन देयर इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, ओके, ठीक है। इसका प्लॉटिंग अभी तक हमने नहीं देखा है। फिर देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्यूबिक फंक्शन, ओके। सो इसका भी डोमेन भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहता है, रेंज भी माइनस इन्फिनिटी रहता है। सो ऐसा कुछ ये क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पे कुछ अनडिफाइंड है, मतलब कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड। अभी उन्होंने एक्स क्यूब माइनस 1 का
प्लॉटिंग किया है, सो फॉर दैट द रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जरूरी नहीं है ये चीज, ठीक है, ये चीज जो है वो जरूरी नहीं है कि क्यूबिक फंक्शन का जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहे, ठीक है। then there is something called as square root function, okay, square root of x, ठीक है। तो अभी क्या है कि ऐसा सेड कि काफी वास्ट टॉपिक है, फंक्शन जो है वो itself it's a very vast topic, okay, so I expect you to go through all each of these graphs, okay, try to plot them। मैंने होमवर्क भी दिया है तुमको, ठीक है, होमवर्क प्लॉटिंग से तुम्हारा काफी कुछ ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फाइन। Yes. I will also plot some graphs now, ठीक है। Then there is something called as rational function. This is again a very important topic, okay? Rational functions के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। Then there is exponential function, okay? Exponential function भी हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। लॉगरिथमिक मैंने अभी एक प्लॉट किया है और मैंने आपको होमवर्क भी दिया है लॉगरिथमिक का, ठीक है। लेट मी सी, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल विद दिस, ओके, and this is the simple exercise, fine। So let us go to plotting of different functions। I'll be a little fast now, okay। The first function that we plot is root x, okay, this is y, this is x, this y is equal to root x, fine। So for what value of x is this defined or not defined? कौन सी वैल्यू ऑफ x के लिए डिफाइंड है नॉट डिफाइंड है? बी फास्ट, बी क्विक विथ योर आंसर्स। कौन से वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है? मैं x नेगेटिव ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता ना, तो नहीं सिर्फ नहीं नहीं तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है, राइट, है कि नहीं? तो सिंपली द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ऐसा क्यों रहेगा इसका ग्राफ? ये ऐसा क्यों नहीं रहेगा इसका ग्राफ? ऐसा क्यों नहीं रहेगा? और ये ऐसा ही क्यों रहेगा इसका ग्राफ? एनी आइडिया? ये प्लॉट करके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इफ यू नो लिटिल बिट ऑफ डिफरेंशिएशन तब भी समझ में आ जाएगा कि इसका ग्राफ ऐसा क्यों आता है और ऐसा क्यों नहीं आता है। इफ यू डू dy by dx, ठीक है, सो वी गेट हाफ रूट x, यस और नो, ठीक है, Yes. है कि नहीं? एंड द वैल्यू ऑफ द स्लोप as the x keeps on increasing, this dy by dx decreases, right? पहले ऐसा है, फिर स्लोप ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, यस और नो? स्लोप डिक्रीज हो रहा है ना जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है। अगर मैंने x इक्वल टू 1 लिया तो मेरा स्लोप क्या है? हाफ है, मेरा स्लोप हाफ है। मैंने x इक्वल टू 2 लिया, मेरा स्लोप क्या है? 1/2 रूट 2 है, विच इज इवन लेसर, है कि नहीं? x इक्वल टू 3 लिया तो 1/2 रूट 3 होगा स्लोप उसका, है कि नहीं? सो दैट इज व्हाई दिस इज, ये इसका ग्राफ ऐसे निकलता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, सो दैट इज द सिंपल ग्राफ ऑफ root x, okay। Now if I have to draw the graph of what, और कौन सा बचता है? quadratic, ax square plus bx plus c। So are we having this quadratic equations in this portion? If we are going to have that, फिर हमको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। quadratic equations हमारे मैथमेटिक्स में है क्या? 12th के पोर्शन में है क्या? 12th में किया है क्या मैथमेटिक्स में? नहीं सर, नहीं, चैप्टर नहीं है सर, अलग। अलग चैप्टर नहीं है, फिर किस में है वो? नहीं। ओके, सो ax square plus bx plus c, ठीक है। सो इफ b square minus 4ac is equal to 0, so this is a, फिर क्या है? ये एक ही रूट निकलेगा, या तो ये ऐसा रहेगा, मतलब हाउ डू आई, एक मिनट, ये सिंपली इफ b square minus 4ac is equal to 0 है, ठीक है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। इसका ये मतलब है कि एक ही रूट है, सो ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ x दिस f of x इज इक्वल टू 0, यस और नो, दैट इज माइनस b बाई 2a, यस और नो, हाँ कि नहीं बोलो। Yes. हाँ सर। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 रहा तो मेरा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो अगर ये 0 है तो मेरा एक ही रूट निकलेगा, माइनस, यस और नो, हेलो, यस हाँ कि नहीं। यस तो मेरा हाँ व्हाट इज दैट वैल्यू, माइनस बी बाई 2a, यहाँ पे कहीं पे तो भी रहेगा, सो ओनली फॉर माइनस बी बाई 2a ये ऐसा ग्राफ रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है, कहीं पे भी रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर दिस वैल्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव, करेक्ट। अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर ये मेरा ग्रेटर देन 0 है तो फिर ये मेरा ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा, दो रूट्स रहेंगे मेरे, सो फॉर टू वैल्यूज ऑफ x, टू वैल्यूज ऑफ x माय f of x इज इक्वल टू 0, यस और नो, है कि नहीं। यस अब ये मेरा तब का ग्राफ है जब मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, आई एम गेटिंग टू रूट्स हियर, हाँ ठीक है। नाउ द यस अदर थिंग इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, जब मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है उस केस में मेरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर एनी वैल्यू ऑफ 0, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब ये ग्राफ इसका ऐसे ही रहेगा, ये कभी भी y एक्सिस से नीचे यहाँ पे जाएगा नहीं, ये ऐसा ही रहेगा ग्राफ, ठीक है। इट विल बी ए सिंपल पैराबोला, पैराबोला पता है ना कैसा होता है, ठीक है। हाँ बाकी भी ग्राफ पैराबोला है लेकिन वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस केस में सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, और ये वाले केस में दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, या तो ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा, ठीक है, फाइन। सो आई एम गिविंग यू अनदर यस होमवर्क, आई एम गिविंग यू अनदर होमवर्क, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसका ग्राफ प्लॉट करना है, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, ये दोनों ग्राफ प्लॉट करना है, फाइन, दिस इज द होमवर्क फॉर यू, ठीक है। यस Now, इसके बाद में उसके बाद फिर क्या बचता है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक हो गया, करेक्ट, हाँ ओके, देन वी हैव रैशनल फंक्शंस, रैशनल फंक्शन में उन्होंने 1/x का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। नाउ फॉर रैशनल फंक्शंस यू डेफिनेटली हैव टू फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। अब जब मेरे पास में ऐसा है f of x equal to 6 minus 4x square by 4x plus 5, ठीक है, सो my x cannot be equal to minus 5 by 4, yes or no, तब मेरा f of x अनडिफाइंड है, राइट, है कि नहीं। तो उस केस में राधा मेरा जो डोमेन है वो मेरा रियल नंबर्स माइनस माइनस 5 by 4 ऐसा ले रखा है उन्होंने, समझ में आया। Yes sir. हाँ Yes sir. ओके, अब उनको रेंज निकालनी है, अब वो रेंज कैसे निकाल रहे हैं, रेंज कैसे निकाल रहे हैं बोलो। सो देखो उन्होंने फिर कैसे किया है उसको, they have taken it as y, okay, then they have brought it in the quadratic equation of x, okay, and then what they have done is उसके बाद में this d has to be b square minus is equal to b square minus 4ac is has to be greater than equal to 0, why, because हमें रियल सॉल्यूशन चाहिए ना, है कि नहीं, हमें x के लिए रियल सॉल्यूशन चाहिए, तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया है कि this has to be greater than 0, उन्होंने y minus 2 and y minus 3 is greater than 0,
therefore either y is less than equal to 2, क्योंकि दोनों मेरे को अगर 0 चाहिए, ठीक है, so यहाँ पे y has to be either less than equal to 2 or greater than equal to 3. This is another property of quadratic. Okay, एक मैंने अभी देखो प्लॉट किया था ग्राफ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, तो इस रूट से अगर कम वैल्यू रही तो ग्रेटर देन 0 है, इस रूट से अगर ज्यादा वैल्यू रही तो ग्रेटर देन 0 है, राइट। एफ ऑफ एक्स, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, तो अगर मेरा ये एक रूट निकलता है, ठीक है, तो ये रूट से अगर मेरे कम वैल्यू रही एक्स की, ठीक है, तो भी ये एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, और ये मेरे बड़े वाले रूट से अगर बड़ी वैल्यू रही तो भी ये ग्रेटर देन 0 है। यस, समझ में आया ना? हाँ, ठीक है, वही कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। सो देन दे हैव फाउंड आउट द रेंज ऑफ एक्स, ठीक है। दिस कैन बी अ क्वेश्चन, दिस कैन डेफिनेटली बी अ क्वेश्चन। अब क्यूब रूट का फंक्शन, क्यूब रूट का कैसे प्लॉट करोगे तुम? क्यूब रूट अगर मेरा एक्स का वैल्यू अगर नेगेटिव रहा तो चलता है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट में एक्स का वैल्यू नेगेटिव नहीं चलता है, क्यूब रूट में एक्स का वैल्यू नेगेटिव चलता है। समझ में आया? हेलो, समझ में आया? यस सर, इसलिए ये ग्राफ Yes, sir. नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेफिनेटली वी कैन डू दैट, ओके। I guess exponential function is the last function that we can take now. Okay. Ax raised to the power n. So I'm taking a simple function 2x cube. Okay. ये एक फंक्शन ले रहा हूं मैं, ठीक है, फाइन। ये x है, ये y है, ठीक है। हाँ, x इज इक्वल टू 1 पे क्या रहेगा? हेलो, जल्दी बताओ, x इज इक्वल टू 1 पे क्या रहेगा? 8, 2. x इज इक्वल टू 1 पे 2 रहेगा, राइट? हाँ 2 1 रहेगा ना? पे 2 रहेगा सर। हाँ, हाँ 2 रहेगा. 2 पे क्या रहेगा? 16. 2 पे क्या रहेगा? 16 रहेगा, ठीक है, 16, 16 है। हाँ, x इज इक्वल टू -1 पे 2 नहीं, -2. -2, यहाँ पे इस तरफ -2, ठीक है। -3 पे x इज इक्वल टू -3 पे क्या रहेगा? -54 पे. -54, मतलब यहाँ पे रहेगा। सो ये ग्राफ इसका ऐसा ही है, ठीक है, ओके। और सपोज मेरा ये दिस इज टू द पावर ऑड ना, x इज टू ऑड पावर है, राइट। अगर मेरे पास में इवन पावर है तो क्या है? इवन पावर रहा तो क्या है? ऐसा ही रहेगा ग्राफ उसका, ठीक है। हाँ. अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं तुमको बता दूं, ठीक है, ये काफी डीप चीज है, ठीक है, काफी डीप चीज है, मतलब इतना एक दिन में होने वाली चीज नहीं। दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी, ओके। फंक्शंस वाला ये चीज, फंक्शंस पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया जाता है इन योर 11th स्टैंडर्ड। फंक्शंस पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया जाता है, ओके। A function is said to be continuous. I'm not getting into continuity as of now, लेकिन मैं तुमको एक बता देता हूँ। कंटिन्यूस तब बोला जाता है जब मेरे रेंज में मैं बिना पेन उठाए अगर मैं एफ ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट कर सका, सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय कंटिन्यूस। यस और नो, है कि नहीं? यस, वही डेफिनेशन है ना कंटिन्यूस का। हाँ, सो अभी now let us say we have f of x equal to x raised to the power 4, and we have f of x is equal to x square and f of x equal to x, ठीक है। सो f of x equal to x का ग्राफ कैसा है? ऐसा है, ठीक है। हाँ, f of x equal to x square का ग्राफ कैसा है?
ऐसा है, ठीक है। कहाँ पे मीट हो रहा है ये? इधर x इज इक्वल टू 1 पे, है कि नहीं? x इज इक्वल टू 1 पे मीट हो हाँ रहा है कि नहीं? 1 पे मीट हो रहा है। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 का ग्राफ कैसे रहेगा? ये इसके अंदर रहेगा, इस वाले कप के अंदर रहेगा, ये वाले कप के अंदर रहेगा, मतलब ऐसा रहेगा ग्राफ या ऐसा रहेगा ग्राफ? मतलब आई एम गिविंग यू चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 2, कैसा रहेगा? दिस इज अगेन द सेम चॉइस वन। नंबर 2। चॉइस टू नंबर 2 टू। रहेगा पक्का? श्योर? हाँ। एक्स रेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 का ग्राफ पूछ रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है, मान के चलो कि मैंने x इज इक्वल टू 2 लिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4। 4। एक्स रेस टू 4 की वैल्यू क्या है? 16, है कि नहीं? हाँ ठीक है। तो 2 पे एक्स रेस टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरी है 4, मतलब यहाँ पे कहीं पे तो भी आएगी, ठीक है। और तो मेरी y की, मेरी एक्स रेस टू 4 की वैल्यू कहाँ पे है? अगर तुम बोल रहे हो कि ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है मेरा, ठीक है। अगर तुम बोल रहे हो कि मेरा 2 ग्राफ है, ठीक है, तो मेरी ये वैल्यू आनी चाहिए ना। बट है क्या वो वैल्यू? मेरी वैल्यू कहीं पे तो भी नहीं। ऊपर है। सो ऐसा है कि उस केस में मेरा अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर ऐसा है, ठीक है, तो मेरा एक्स रेस टू 4 का ग्राफ और थोड़ा स्टीप रहेगा ऐसे। इट विल बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स योर वाई एक्सिस। समझ में आया? दिस इज योर एक्स रेस टू 4 ग्राफ, दिस इज योर एक्स स्क्वायर ग्राफ, ठीक है। फॉर a lesser value of x, for a lesser value of x, you will get a value which is what? लेकिन यहाँ पे एक और चीज, एक और कैच है, हाँ? एक और कैच है यहाँ पे। इफ वी लुक एट द ग्राफ नियर द ओरिजिन, ठीक है, ये भले ही हमें एक्स रेस टू 4 का ग्राफ जो है वो ऐसा दिख रहा है अपने को, ठीक है, बट हमारे पास में जो वैल्यूज जो है बिटवीन 0 to 1, 0 to 1, एक्स रेस टू 4 की वैल्यूज विल बी लेस देन एक्स स्क्वायर की वैल्यूज, है कि नहीं? अगर मैंने एक्स इज इक्वल टू हाफ लिया तो एक्स रेस टू 4 क्या है? 1/16 है, विच इज लेस देन 1/4, है कि नहीं? यस है यस। कि हाँ। तो उस केस में मेरा ग्राफ कैसा रहता है उस समय पे? भले ही कॉमन पॉइंट एक ही है, कॉमन पॉइंट जो है वो एक ही है, मतलब मेरा एक्स रेस टू 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने अगर लिया, सो आई गेट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे तो है ही कॉमन, ठीक है, एक पॉइंट तो है ही यहाँ पे कॉमन, एंड दूसरा क्या है? +-1, मतलब कि ये ग्राफ जो है एक्स रेस टू 4 का ग्राफ जो है, ये अगर एक्स रेस टू 4 का ग्राफ है, अगर यहाँ पे एक्स रेस टू 4 का ग्राफ है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा रहेगा? इट विल बी ग्रेटर, समझ में आया? बिटवीन 0 to 1, बिटवीन 0 to 1, सॉरी, ये अगर सपोज ये 0 to 1 है, तो दिस ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है, अगर ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, दिस विल बी ग्रेटर देन योर एक्स रेस टू 4 ग्राफ, है कि नहीं? ये दिख रहा है ना अपने को यहाँ पे? समझ में आया? हाँ हाँ। क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट्स मिल रहे हैं ना अपने को कॉमन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दो मिल रहे हैं अपने को। ओके, सो गो एंड स्टडी फंक्शंस, ग्राफ सीखो कैसे प्लॉट करना है, एंड डू द होमवर्क। ओके, कौन सा होमवर्क बोला है मैंने? कौन सा होमवर्क बोला है मैंने? ये वाला होमवर्क, ठीक है, ये दो होमवर्क है। फिर और कौन सा होमवर्क है?
log x base 2x का ग्राफ। हाँ, और ये एक होमवर्क है, ठीक है। और कौन सा है? mod x minus mod 3 का x, और हाँ। x क्यूब माइनस 8 का, ठीक है। इन दोनों के ग्राफ प्लॉट करने, ओके। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। ये इसका एप्लीकेशन अभी हर जगह पे है कैलकुलस में, तो दिस इज द बेसिस, ओके फाइन। Yes. लेट्स एंड द क्लास फॉर टुडे। अभी रोज ऐसे ही क्लास चलेगा, 1-2 घंटा ही क्लास चलेगा, बिकॉज वी हैव टू फिनिश द पोर्शन। So what is the domain of this e raised to x function? x कौन सी वैल्यूज ले सकता है? ऐसा कोई वैल्यू है कि जहां पे e raised to x डिफाइंड नहीं है? मतलब all real numbers। all और real numbers. ठीक है, and then what is the range? हाँ। What is the range? So if x belongs to Range R, then y, if y is equal to e raised to x, then y belongs to what? मतलब y belongs to what is the range? in infinity minus infinity to infinity होगा फिर। तो तुम बोल नहीं, रहे हो कि e raised to x is equal to Zero to minus, infinity, zero to infinity। 0 to infinity होगा। ओके। और ग्राफ कैसे रहेगा फिर इसका? 0 पे 1 है, 0,1 है कि नहीं? यहाँ पे पहला पॉइंट मिला, ठीक है। e raised to minus infinity is approaching 0, yes or no? मतलब 1 upon e raised to infinity Yes। हो गया, राइट? दिस इज अप्रोचिंग 0, राइट? तो ये इस तरफ है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, और ये ऐसा, इसके बाद ऐसा जा रहा है, ठीक है। समझे? कोई डाउट है इसमें? हाँ। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। ओके, सो दिस इज सिंपल एक्सपोनेंट ग्राफ, ठीक है। एंड देन if we take 1, this is 1 comma e, ठीक है। if this is 1 on the x-axis, this point is 1 comma e. कोई डाउट है इसमें? एंड e की वैल्यू क्या है? इट इज नहीं। अप्रोक्सीमेटली 2.7, ठीक है। 2.7। नाउ व्हाट इज द ग्राफ फॉर a raised to x? a is some constant, okay, a is some constant, तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा? सेम ना, x इज इक्वल टू 0 पे तो 1 ही रहेगा, राइट? x इज इक्वल टू 0 पे तो 0,1 ही रहेगा, राइट? है कि नहीं? माइनस इंफिनिटी पे मतलब a is basically greater than 0, this I have to state it, a is greater than 0, okay। हाँ, नहीं तो अगर a is equal to a is less than 0 रहा तो मैं ग्राफ नहीं बना सकता, क्योंकि कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा, आई कैन नॉट सी दैट, करेक्ट? हाँ। सो a हैज टू बी ग्रेटर देन 0, तो कैसा है? यहीं से स्टार्ट होगा ना, ऐसे ही स्टार्ट होगा, और ये यहाँ पे जाएगा, और ये वाला पॉइंट क्या है? 1,0, सो दिस पॉइंट इज 1,a, करेक्ट? A। है Yes। कि नहीं? This is going to infinity, so the range is obviously also from 0 to infinity, ठीक है। and domain obviously real numbers है, so x belongs to R, ठीक है। yeah, please rejoin the meeting, or wait, we can do one more concept here, okay, we can do one more concept here, composite functions, okay. Rest of the things we are going to solve, okay, we are going to solve some unsolved or solved problems, but first have a look at the composite functions. So let us have a reading at the definition. A method combining the function f from a to b with g, b to c is composition of the function defined as f of g is equal to f of g of x and read as f composed with g.
अब इसको थोड़ा सा समझना, इस सेंटेंस को समझना थोड़ा सा मुश्किल है. Okay? They have given an illustration for it. Okay? They have given an illustration for it. A cow produces 4 liters of milk in a day. ठीक है? Then X numbers of cows Yes. produce 4x liters of milk in a day. This is given by f of x is equal to 4x. Okay, fine. Price of 1 liter milk is rupees 50. Okay, then the price of y liters of milk is 50y. This is given by g of y is equal to 50y. Now a function h of x gives the money earned from x number of cows in a day as a composite of f and g, which is equal to g of f of x. Okay, समझ में आया क्या बोल रहे हैं वो? Yes, sir. So g of f of x is equal to 50 into 4x is equal to 200x. Simple है. ठीक है? Now let us have a look at the, this thing, f of g of x for the example number 3. I can explain the cow example again. Do you want me to explain the cow example again? Hello? Yes, sir. Do you want me to explain the cow example again? Okay. So there is Yes, a cow. sir. Yes. So one single cow gives 4 liters of milk in a day. Okay. So the number of liters given in a day is equal to f of x is equal to 4 into x, where x is basically the number of cows. X is the number of cows. ठीक है? है कि नहीं? So the number of liters of milk given is 4 into x. Yes or no? Yes. Now there is another this thing. Liters of milk, g of y. G of y is equal to how much? 50 into y. So if y liters of milk is produced, so y is basically what? Liters of milk produced in a day. Yes or no? Liters of milk produced in a day. इसमें कोई डाउट है अभी? इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं. So this is the cost of the total milk. है कि नहीं? Now they are asking कि अगर suppose मेरे पास x cows है, अगर मेरे पास x cows है, तो मेरा टोटल सेलिंग कितना होगा? मतलब मेरा कितने का दूध निकलेगा? है कि नहीं? तो मुझे y नहीं पता ना, लेकिन मुझे x अगर पता है, ठीक है कि नहीं? तो मैं y नहीं कैलकुलेट कर सकता हूँ. यस और नो? लीटर्स ऑफ मिल्क मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? कि लीटर्स ऑफ मिल्क ही है ना. अगर सपोज मेरे पास x काउज है, तो मेरे पास 4 into x लीटर्स ऑफ मिल्क है. यस और नो? है कि नहीं? So instead of y, Yes. I substitute f of x. So instead of, this is g, okay? So g of f of x I substitute, okay? And this gives 50 into 4x is equal to 200x. ठीक है? अब समझा? अब कोई डाउट है कि इसमें? नहीं. पक्का? Okay. Now let's have a quick look at example number 3. ठीक है? यहाँ पे f of x is equal to 2 by x plus 5 दिया हुआ है and g of x is equal to x square plus 1 दिया हुआ है. Then find f of g of x. तो जब मैं f of g of x फाइंड कर रहा हूँ, तब मैं क्या करता हूँ? x की जगह पे मैं g of x डाल देता हूँ. ये सब नो? x की जगह पे मैं g of x डाल देता हूँ, है कि नहीं? तो मैंने क्या किया? x की जगह पे x square minus 1 डाल दिया. समझा? तो ये 2 by x square plus 4 होगा. ठीक है? फिर जब मुझे g of x f of x फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इंस्टेड ऑफ x आई विल राइट 2 by x plus 5. x की जगह पे मैं 2 by x plus 5 लिख दिया मैंने, है कि नहीं? फाइन. Yes. And they have asked us to find that value at x is equal to 3. करेक्ट? तो उन्होंने, मैं वो डाल दिया, ये मुझे फंक्शन मिला और x is equal to 3 सब्स्टिट्यूट किया. I get -15 by 16 as the answer. ठीक है? बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें. ठीक है? करेक्ट? Yes. Okay. Now please rejoin now. ठीक है? Rejoin the meeting. There is something called a signum function. Okay. For x less than 0 is equal to -1. For x is equal to 0 it is 0, and for x greater than 0 it is 1.
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, ये बहुत ज्यादा यूज होता है. ओके, दिस विल कम एवरीवेयर. ये तुमको हर जगह पे आएगा सिग्नम फंक्शन. इसके हायर एप्लीकेशंस आएंगे. ठीक है, सो आई एम लाइक एट द फ्रंट आई एम टेलिंग यू कि इसका एप्लीकेशन क्या है. ठीक है, Yes. वी हैव आल्सो स्टडीड दिस एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस वैल्यू फंक्शन हमने स्टडी कर लिया है. यस और नो? ठीक है. हाँ, देन देयर विल बी सम एग्जांपल्स लाइक दिस. एग्जांपल नंबर 10 जैसा दिख रहा है तुमको. ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. देयर कैन बी एग्जांपल नंबर 11. ओके, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं तुमको. ठीक है, एंड Yes. and now we are going to look at what do we call as the inverse integer function and the fractional part function. Before that मैं ये तुमसे पूछना चाहता हूँ कि इनवर्स फंक्शन तुमने स्टडी किया है राइट? हर जगह पे इनवर्स फंक्शन तुमने ट्रिग्नोमेट्री में देख लिया है. ओके, सो इनवर्स फंक्शन का यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? इनवर्स फंक्शन का यहाँ पे डेफिनेशन ये दिया हुआ है कि let f from a to b be 1 and onto function and of x equal to y. The inverse function f inverse from b to a is defined as f inverse y is equal to x if f of x equal to y. बहुत सिंपल डेफिनेशन है. कोई ऐसे it is not something that is very weird to us, correct? Yes. Okay, so let us take one basic example number 7. Okay? So f of x is equal to 9 minus 5x दिया हुआ है. Okay? They have given f of x equal to 9 minus what? 9 minus 5x दिया हुआ है, right? है कि नहीं? Now let us say this is y, correct? Now we have to find f inverse of f inverse y is equal to x. ऐसा हमको find out करना है. So we need to find this f inverse. Yes or no? ठीक है? Yes. So what do I do? 9 minus 5x is equal to y. So 9 minus y is equal to 5x and x is equal to 9 minus y by 5. So हमको ये मिल चुका है. So this is our 9 minus y by 5 is our f inverse y. ठीक है? And they have asked us to find f inverse minus 1. So मैं यहाँ पे y की जगह पे -1 पुट करूंगा. -1. I will get x की वैल्यू. ठीक है? वेरी सिंपल. Yes. कोई डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है? Now let us take another example. Determine whether the function f of x equal to 2x plus 1 by x minus 3 has an inverse. If it exists, find it. Okay? बताओ. So how do we check whether it is a 1-1 function and onto function? So 1-1 ये तभी होगा when अगर सपोज हमने x1 and x2 ये दो अलग अलग वैल्यूज ली. So we ultimately result as x2 is equal to x1. ठीक है? अगर ये ऐसा नहीं आता, then we cannot say it is a 1-1 function. Okay? Fine? Yes. Yes. Then what they have done? फिर अभी now they are asking us to find us f inverse y. So they have simply put y is equal to 2x plus 1 by x minus 3. Fine? And they have expressed x in terms of y. And they have clearly said that y should not be equal to 2. ठीक है? Yes. So then they get the range also. अब वो बोल रहे हैं कि range जो है it is all real numbers minus 2. समझ में आया? Yes. Which is contradiction. So 2 does not belong to range of f. Here the range of f of x is r minus 2. X is defined at or for all y in the range. Therefore, f of x is onto function. As f of x is 1-1 and onto, so f inverse exists. ठीक है? Yes. अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स उन्होंने अगर दिए हैं नहीं दिए हैं, इट इज आवर ड्यूटी टू फाइंड इट आउट. ओके, ऐसे एग्जांपल्स भी दिए होंगे, अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स भी दिए होंगे. ओके, नाउ सिग्नम फंक्शन हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है कि नहीं? मैंने बता दिया ओरली. एंड वी हैव आल्सो स्टडीड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. ठीक है?
I want you to go through these properties. Okay, like inequality वगैरह, ये inequality जो भी properties है, go through it. Okay, सिर्फ yes, this class is for the gist. Okay, gist of all the things that are coming in your, you know, in your exam. We this class is mostly for doubt solving and some theoretical, you know, reprise. Theoretical reprise मतलब जो भी तुमने theory अभी तक पढ़ा हुआ है, उसको अगर तुमको नहीं समझ में आया है, so I'm here to just explain it in a better way. Okay, fine. yes, Okay, so yes. just the theory. कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछो, ठीक है? And then we have to finish this function chapter now. Okay, let us start with this thing. What is the greatest integer function? कोई बता सकते हैं what is the greatest integer function? Hello, Yes, sir. what is the greatest integer function? मतलब सर वो राउंड ऑफ करता है ना नंबर को। Up to what? राउंड ऑफ टू किसको करता है? मतलब कौन से नंबर पे राउंड करके लेके जाता है वो? कौन से नंबर पे राउंड करके लेके जाता है? लेटर से मेरे पास 7.7 है, ठीक है? तो मैंने अगर x की जगह 7.7 डाला तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे क्या वैल्यू देगा? 8 नो, then इट विल गिव मी 7. 7 इट विल गिव मी 7, ठीक है? सो 0 से 1 के Okay. बीच में, ठीक है? 0 से 1 के बीच में इट विल गिव मी 0, ठीक है कि नहीं? 1 से हाँ 1 से 2 के बीच में इट विल गिव मी 1. ओके, दिस इज, मैं जहां जहां पे सर्कल बना रहा हूं वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है? 2 से हाँ 2 से 3 के बीच में इट इज गिविंग मी व्हाट? 2 अगेन हियर, है कि नहीं? फिर 0 से कम लिया तो वो मुझे यहाँ पे ऐसे दे रहा है, ठीक है? -1 दे रहा है, ठीक है? -1 से 2 लिया तो मुझे ऐसा दे रहा है. सो दिस इज अ स्टेप फंक्शन. ओके, ये सर्कल का ये मतलब है, ये जो सर्कल में ड्रॉ करो, सो दीस पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड. ओके, फाइन. yes. What is the domain for this function? Radha, what is the domain for this function? Uh, ऐसी कौन सी वैल्यू है क्या x की जो ये नहीं ले सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर? राधा, आई एम आस्किंग यू अगेन, ऐसी कोई वैल्यू है क्या x की जो मैं नहीं ले सकता? ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके नहीं देगा? नहीं सर. तो रेंज क्या है, डोमेन क्या है इसका? -infinity to infinity. मतलब रियल Ball. नंबर्स, रियल नंबर्स ना? हाँ real number. हाँ सो x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, करेक्ट? यस और नो? हाँ. Yes. हाँ. फिर नाउ व्हाट इज द रेंज? रेंज क्या है इसका? इज इट नॉट ऑल इंटीजर्स? है कि नहीं? सारे इंटीजर्स Yes. है ना? Yes. है कि नहीं? हाँ. -1 है, 0 है, 1 है, -2 भी है, -3 भी है, ऑल इंटीजर्स, राइट? ठीक है? हाँ. अभी कोई डाउट है इसमें? ग्रेटेस्ट इंटीजर में पहली बार पढ़ रहे हो कि तुम इसको? नहीं हाँ. नहीं पहली बार पढ़ रहे हो इसको? हाँ. मानस, व्हाट अबाउट यू? पहली बार पढ़ रहे हो कि इसको? 11th में था मतलब ये, हाँ, बट पर ज्यादा डिटेल में नहीं था, बस मतलब राउंड ऑफ करता इतना ही पता था, कुछ नहीं था। ओके. Now we come to this part, fractional part. So this is x minus greatest integer of x. ठीक है? अब ये कैसे रहेगा पता है? Between 0 to 1. Okay?
if x belongs to 0 to 1, ठीक है, so x is equal to x, right? है कि नहीं? And greatest integer of x is equal to what? 0, है कि नहीं? 0. So between 0 to 1, this is f of x equal to x minus greatest integer of x is equal to what? x, है कि नहीं? ये तो 0 है ना, ये तो 0 है, हाँ 0 है, हाँ तो देखो only x, है कि नहीं? So between 0 to 1 ये ऐसा है, x है, this is not included, this point is not included, ठीक है? From 1 to हाँ 2, from 1 to 2 क्या है मेरा? It is x minus 1, x तो x ही रहेगा, greatest integer of x मेरा 1 हो जाएगा, right? है कि नहीं? हाँ हाँ. तो मैं f of x is equal to x minus 1, x minus 1 है, हाँ तो हाँ यहाँ पे स्टार्ट होगा, ऐसा है, फिर ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, ठीक है? समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ. जस्ट गो बैक एंड वेरीफाई, जस्ट गो बैक एंड वेरीफाई, ठीक है? दिस इज 0 minus 1, sorry 1 2 3 4, this is minus 1 minus 2 minus 3. कोई डाउट इसमें? नहीं. पक्का? Yes. Okay. So what is the domain for this function? Radha, what is the domain now? सर रियल नंबर्स. पक्का? हाँ माइनस है, कोई ऐसा नंबर है जो ये नहीं लेगा करके, ऐसा कोई है क्या? नहीं सर. ठीक है, so x belongs to real numbers, ठीक है? Real numbers. Yes. फिर what is the range? रेंज क्या है अभी यहाँ पे? दिख रहा है क्या सामने? कहाँ तक जा रहा है ग्राफ ये? कोई भी वैल्यू ले लूं मैं x की, कहाँ तक जा रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम इट इज अचीविंग? Infinity. हाँ, Infinite no? इन्फाइनाइट अचीव हो रहा है क्या? ये इन्फाइनाइट पॉइंट है मानस? नहीं मतलब नहीं ऐसा नहीं. हाँ हाँ. क्या अचीव हो रहा है यहाँ पे? हेलो, जल्दी बताओ यार मुझे. Yes. 0 to 1, 1 नॉट इंक्लूडेड, 0 इज इंक्लूडेड, ठीक है? स्क्वायर ब्रैकेट है, दिस इज द रेंज. समझ में आया? हाँ हाँ yes. ठीक है, कोई डाउट अभी इसमें? नहीं. हाँ. नाउ they can ask you, like example number 11, what is the domain of this particular function? I'll take it here, okay? 1 by 1 by under root mod of mod x minus 1 का whole mod minus 3, ठीक है? कोई डाउट है इसमें? नहीं. क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? नहीं. ठीक है, ये पूरा मॉड है, राइट? पूरा मॉड है, सो ऑब्वियसली ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये पूरा मेरा पॉजिटिव रहना चाहिए, राइट? सो मॉड ऑफ मॉड एक्स हाँ. minus 1 minus 3 has to be greater than 0, correct? So mod of mod x minus 1, ठीक है, has to be greater than 3, correct? ठीक. हाँ, इसका ये मतलब है कि मेरा mod of
mod x -1, ठीक है, -1, ये या तो मेरा ग्रेटर देन 3 रहे, या mod ऑफ x -1 ये मेरा लेस देन 3 रहे, क्योंकि अगर मैं बाहर मॉड लगा दूंगा तो ये वैसे ही ग्रेटर देन 3 हो जाएगा ना, है कि नहीं? हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, तो या तो ये ग्रेटर देन 3 रहे या फिर ये लेस देन 3 रहे। लेस देन 3 रह सकता है क्या? लेस देन नहीं। -3, ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ लेस देन -3 है मॉड ऑफ, अगर मेरा ये मॉड ऑफ x -1 अगर इक्वल टू -2 रहा तो ये मुझे नहीं चलता ना, ये तो उसको 2 कर देगा, इसका पूरा मॉड लिया तो 2 कर देगा, राइट? तो ये मुझे वैल्यू नहीं चलती, मुझे -3 चाहिए यहाँ पे। -3 मतलब कि और मैं 0 तो नहीं ले सकता इसको, मुझे ग्रेटर देन 0 ही चाहिए ना, मुझे मैं 0 नहीं ले सकता इसको, इस पूरे टोटल अंडर रूट को 0 नहीं ले सकता, तो मुझे यहाँ पे इक्वालिटी की साइन मैं नहीं ले सकता, राइट? मुझे ग्रेटर देन चाहिए या लेस देन चाहिए, राइट? तो मैं पहला वाला इनइक्वालिटी पहले सॉल्व करूँ। पहला वाला इनइक्वालिटी मैंने सॉल्व किया, सो मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, एंड मॉड ऑफ x इज लेस देन, मॉड ऑफ x इज लेस देन, अगर मैंने दूसरा वाला इनइक्वालिटी लिया, ये वाला इनइक्वालिटी लिया मैंने, सो इट बिकम्स मॉड ऑफ x इज लेस देन -4 -2 कैसे? -3 +1 हो जाएगा ना, तो ये -2 हो जाएगा। हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ ये वाला इधर लिया मैंने और ये वाला इधर लिया मैंने, ठीक है, हाँ ओके। अब ये तो हमेशा ही है ना, ये तो हमेशा ही वैलिड है, राइट? ये कभी हो सकता है क्या? ये कभी हो सकता है मेरा, ये कभी हो सकता है नहीं। क्या? ये मेरा लेस देन -2 हो ही नहीं सकता, तो ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का पॉइंट ही नहीं आता है। तो द ओनली इनइक्वालिटी लेफ्ट इज mod x is greater than 4, correct? Mod x is greater than 4, so I get the only domain is -infinity to -4 and what 4 to infinity, ठीक है, यस ठीक है, यूनियन, यूनियन ना, यूनियन, ठीक है। Is it the answer? Is it the answer? Yes. X belongs to -4 to 4 दिए, अच्छा, वो खुद ही बोल रहे हैं कि mod x is greater than 4 बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि x belongs to -4 to 4, ये कैसे होगा भैया? ओके, इफ आई टेक x is equal to x belongs to -4 to 4 अगर लिया मैंने, ठीक है, हेलो हेलो, यस अगर x belongs to यस -4 to 4 लिया और मैंने x की वैल्यू लेटर से 0 ले ली, -4 to 4 के बीच में आती है 0 की वैल्यू, ठीक है कि नहीं? तो ये सही में होने वाला है क्या? So this is a wrong answer. Okay, this is a wrong answer, and whatever we have done is a correct answer. इसका सॉल्यूशन, हमको इसका ही सॉल्यूशन देखना है ना, है कि नहीं? हमको इसका ही सॉल्यूशन देखना है, खुद ही बोल रहा है कि mod x has to be greater than 4, तो फिर x मेरा -4 से 4 के बीच में कैसे हो सकता है? इनका आंसर गलत है, समझ में आया? इनका आंसर गलत है, और हमने जो आंसर निकाला वो सही है। दिस इज अ करेक्ट आंसर, दिस इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, यस ठीक है। Now, can you solve this example number 12? This is your homework, okay? This is your homework. I am not going to do this question for you. Fine? काफी simple है ये। तो अलग अलग, I will give you a hint to start. I will give you a hint to start.
mod of x minus 1 plus mod of x plus 2 is equal to 8 is equal to 8. ठीक है. Now let us say my x is greater than 1. When my x is greater than 1, तो ये तो मेरा greater than 0 होगा, right? And ये भी मेरा greater than 0 होगा. So when this is greater than 0, inside वाला term अगर मेरा greater than 0 है, so this becomes my x plus 1 plus x plus 2 is equal to 8. Correct? 2x minus 1 is equal to 8 and x is equal to what? 9 by 2. Sorry, 7 by 2. ठीक है? 10 by 2. हाँ. ये एक सॉल्यूशन मिला मुझे. Now let us say मेरा x is less than minus 2. मेरा x is less than minus 2. ठीक है. तो उस केस में क्या होगा फिर मेरा? उस केस में क्या होगा मेरा? x माइनस x प्लस 1, क्योंकि ये तो मेरा नेगेटिव चला जाएगा ना. x माइनस 1 नेगेटिव चला जाएगा अगर मैंने इससे कम वैल्यू लिया है. यस और नो? तो ये मेरा माइनस x प्लस 1 माइनस x माइनस 2, क्योंकि ये मेरा ये भी नेगेटिव चला जाएगा ना, है कि नहीं? तो this is equal to 8 और माइनस 2x माइनस 1 is equal to 8 and x is equal to minus 9 by 2. Another value. Yes. तो ऐसे ही तुमको और दो वैल्यूज मिलते हैं क्या, मुझे बताओ. ठीक है. Then you have to take x between minus 2 to 1. ठीक है. उस केस में क्या होता है मुझे बताना पड़ेगा तुमको. ठीक है. और then you have to take, मतलब ये तो मैं कर चुका हूँ. ठीक है. x ग्रेटर देन 1 भी ले चुका हूँ. ठीक है. तुमको बस ये वैल्यू के लिए क्या निकलता है आंसर मुझे बताना है. ठीक है. समझे क्या? उसके लिए मेरे ख्याल से नो सॉल्यूशन आएगा. इसके लिए नो सॉल्यूशन आएगा मोस्टली. सो दीज आर द ओनली टू वैल्यूज दैट यू गेट. So these are the only two values that you get. Fine. Yes. So let us take a break of 10 minutes. Okay, 10-15 minutes. We'll be back. Okay. Yes. We'll be back after 10-15 minutes and then we'll start with limits and continuity. The whole exercises are your homework. Okay. The whole exercises are your homework. कुछ नहीं है. It's a very very basic like chapter, and this forms the basis for every other chapter. Okay, this forms the basis for every other chapter. Fine. So Yes. let's be back after 10-15 minutes. Okay. Yeah. So now we are about to start limits and continuity. This is not a different chapter. These two are not two different chapters. This is the same chapter itself. Okay. So limits basically ऐसा है कि हमारे पास में एक फंक्शन है. Okay. F of x. I'm just revising it. Okay. So there is a left hand limit and there is a right hand limit. ये सबको पता है? मानस, राधा? Left hand limit and right hand limit. Okay. So अगर suppose मेरे पास एक point A है. Okay. Like x is equal to A है. And I am approaching the value of f of x from the left hand side, मतलब a minus h. मतलब a नेगेटिव से मैं अप्रोच कर रहा हूँ. And there is a right hand limit where I am approaching from a positive and there is a negative. तो a नेगेटिव का ये मतलब है कि मैं f of a minus h देख रहा हूँ, where limit h is tending to 0. ठीक है. And limit h tending to 0, f of a plus h is your right hand limit. So this is my left hand limit and this is my right hand limit. ठीक है. इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं. So a function is said to be continuous. हमने functions अभी तक स्टडी कर लिया है थोड़ा बहुत. ठीक है. So function is said to be continuous when the left hand limit, the right hand limit and f of a is equal to same. मतलब मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट है, मेरा f of a है एंड मेरा राइट हैंड लिमिट है. दिस इज
all equal. And what do you mean by limit h tending to a? What is this limit? Limit h tending to a का क्या मतलब है? Limit h मतलब वो हाँ अप्रोच कर रहा है उधर। नहीं लिमिट h टेंडिंग टू a का ये मतलब है कि h इज वेरी 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 स्मॉल वैल्यू, ठीक है, विच इज क्लोज टू जीरो। हाँ ठीक है, विच इज क्लोज टू हाँ जीरो। मतलब कि अगर सपोज मैंने ले लिया कि h की वैल्यू 0.0000000000000 ऐसे 20 बार जीरो लिखा और 1 लिखा, ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर सपोज ये 20 जीरो है यहाँ पे पॉइंट के बाद में, तो आई कैन राइट अनदर वैल्यू which will be 21 times 0, ठीक है। So this can be h, मतलब h हमारे इमेजिनेशन से बहुत ही ज्यादा छोटा वैल्यू रहेगा, which is very close to 0, and how close it is we don't know, it is just tending to 0, it is not exactly 0, it is tending to 0. So ठीक है, now yes we see what is the definition of limit. Have they given it anywhere, the definition of limit? Suppose x is a variable, I'm reading it, and a is a constant. If x takes values closer and closer to a but not equal to a, we say that x tends to a. Symbolically, it is denoted as x tending to a. So x can tend to from the positive side also. ये वाला पॉजिटिव साइड हो गया और ये वाला नेगेटिव साइड हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव साइड हो गया और ये नेगेटिव साइड हो गया. सो जस्ट एज आई सेड, एक्सटेंडिंग टू a माइनस और एक्सटेंडिंग टू a प्लस, दोनों ही लिमिट्स है, ठीक है. नाउ आई एम सेइंग दैट ये जो भी है, whatever the definition of limit we have given, they have given a very mathematical definition. If there is an epsilon greater than 0, there exists a row greater than 0 such that f of x minus L is less than epsilon, mod of f of x minus L is less than epsilon for all x minus a mod of x minus a less than rho. Then we say that f of x is tending to L as x tends to a. This is a very very engineering type of definition जो उन्होंने दिया हुआ है, और mathematical type of definition जो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है. हमने उसको एज अ, ये जो हमने पढ़ा अभी, ठीक है, ये जो हमने पढ़ा अभी वो उसका मीनिंग है, ठीक है, ये उसका मीनिंग है, ठीक है. सो आई एम नॉट गोइंग टू गो मच इनटू दिस थिंग, ओके. इन्होंने क्या बोला है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू a. सो लिमिट x मतलब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू l, ओके. अगर ये एग्जिस्ट करता है, then we say that f is that the limit exists, okay, and its value is L. अगर सपोज ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, then the limit does not exist, okay. मतलब इसको ही कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं ना. हाँ, इसी को डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस जो है वो क्या बोलते हैं, उसमें एक और है कि भैया अगर सपोज मेरे पास में x इज इक्वल टू a पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो f of x f of a इज इक्वल टू l रहना चाहिए मेरा. समझ में आया? अच्छा, हाँ. अब लेट अस से मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, ओके. f of x इक्वल टू 3x plus 1 for x less than 1 and f of x equal to 7x square minus 3 for x greater than equal to 1. I am writing it down, ठीक है. f of x equal to, this is an example of a discontinuous function, okay. डिसकंटिन्यूअस नहीं, मतलब कि एक जहां पे हमारा फंक्शन ही चेंज हो रहा है, ठीक है. सो क्या दिया है, 3x plus 1 दिया है उन्होंने, 3x plus 1 दिया है, एंड दूसरा क्या दिया है उन्होंने, 7x square minus 3 दिया है, ठीक है. सो 7x square minus 3 दिया, ओके. नाउ for this is x less than 1 and this is for x greater than equal to 1. So if I have to see the left hand limit, ठीक है, so I have to write 3 of 1 minus h plus 1. ये 1 minus h तो मेरा 1 से कम रहेगा, राइट, if h is tending to 0 and greater than 0, राइट, है कि नहीं. so मैं ये वाला लूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज 3
minus 3h plus 1 is equal to 4 minus 3h. This I can assume approximate to be 0. Correct? Fine. और अगर सपोज मुझे राइट हैंड लिमिट लेना है एट x is equal to 1, so at right hand limit is equal to what? 7 into 1 plus h whole square minus 3. Okay? है कि नहीं? मैं just continuing it there. 7 into 1 plus 2h plus h square minus 3. So 7 plus 14h plus 7h square minus 3. So this is 4 plus 14h plus 7h square. This can approximately be taken 0. This can be taken 0. So the right hand limit is also 4. So my left hand limit at x is equal to 1 is right hand limit at x is equal to 1, which is equal to 4. इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं। हाँ सर मतलब अब हमने x की वैल्यू जो पुट की ना, वहाँ पे हम बिना मतलब 1 प्लस h के सीधा 1 नहीं पुट कर सकते क्या x की जगह? नहीं हम H 1 नहीं ना पुट कर सकते, बिकॉज वी हैव टू सी कि यहाँ पे कुछ h अगर हमने हमारे डालने से कोई फर्क पड़ रहा है। ठीक है? अच्छा। नाउ दिस इज अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ। लेट अस से हमारा h अगर डिनोमिनेटर में होता तो फर्क पड़ता, राइट? बिकॉज एक्स अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। अगर डिनोमिनेटर में रहता तो फर्क पड़ता ना हमारा। ठीक है? अच्छा। that is why we have to consider h. okay, and now अगर मुझे ये पता है कि मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या बोलते हैं सेम है, ठीक है? सो देन I can say that x is continuous at x is equal to 1. Yes or no? At x is equal to 1 it is continuous, right? Yes. लेकिन मेरा x less than 1 पे कंटिन्यूस है या नहीं है? ये भी तो कंटिन्यूस फंक्शन ही है, ये भी तो कंटिन्यूस फंक्शन ही है। सो मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, कंटिन्यूस फंक्शन को जज कैसे करते हैं कि मैं बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? ठीक है? सो अगर सपोज मेरा x लेस देन 1 है, ठीक है, तो मेरा वैल्यू क्या निकलता है मेरे पास 4 निकलता है कि नहीं? तो इसके आगे जो है वो फंक्शन ऐसा है, एंड इसके आगे जो है इस तरफ जो है फंक्शन वो ऐसा है। सो दिस इज स्टिल कंटिन्यूअस। ओके, यस। 3x plus 1 है फॉर x लेस देन 1। ठीक है? x इज इक्वल टू अगर मैंने 0 लिया, x इज इक्वल टू मैंने 0 लिया, सो आई एम गेटिंग 1 एज द आंसर। तो मेरा ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है इधर, समझ में आया? एंड द स्लोप इज पॉजिटिव। और मैंने अगर x ग्रेटर देन 1 लिया, ठीक है, सो माय फंक्शन इज बिकमिंग 7x स्क्वायर माइनस 3 विच इज अ पैराबोला। ठीक है? ओके, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब डिफरेंशिएबल है या नहीं है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट थिंग, हम बाद में देखेंगे। लेकिन कंटिन्यूअस तो है बिकॉज मैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 इज सेम एज द राइट हैंड लिमिट। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट इज, एंड ये इस तरफ तो कंटिन्यूअस है ही x ग्रेटर देन 1 के बाद में, और यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है। ठीक है? सो आई कैन से कि दिस फंक्शन इज ओवरऑल कंटिन्यूअस इन द रेंज r ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है? कोई डाउट है इसमें? नहीं। I want you people to go through this, you know, लिमिट्स के जो भी क्या बोलते हैं, हेलो, यस सर। Yes, sir. I want you people to go through these, you know, limit examples. Okay, fine. And yes. I also want you people to you know, study the series. Okay, कौन सा सीरीज मैं बताता हूँ तुम, the Taylor series. Can you see the screen? Can you see the screen here? Yes sir. Okay, so this is the Taylor series expansion for e raised to x sin x cos x ln 1 plus x tan inverse x. Okay,
तो यहाँ पे ये सारी सीरीज के एक्सपेंशंस है, ठीक है। Now these are very much used in deriving the answers for the limits, okay। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल तुमको बताता हूँ यहाँ पे क्या किया है। तो उन्होंने where are they, just 1 minute, okay। ये चैप्टर जितना बड़ा दिखता है उतना है नहीं, ओके। इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर। Can you see this limits of exponential and logarithmic functions? Hello? Yes, yes. Can you see this? So what they have done is Yes. they have used the Taylor series here. Okay. They have used the Taylor series here to find out these limits. Okay. E raised to x minus 1. E raised to x minus 1 किया तो मुझे x plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial whole upon x मिलेगा, है कि नहीं? So Yes. I'm giving you one example. Okay. I'm just giving you one example. So e raised to x is equal to 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial dot 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 dot. ठीक है? If I do e raised to x minus 1, I'll get x plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial dot 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 dot. ठीक है? समझ में आया मैं क्या लिख रहा हूँ? तो and if I do e raised to x minus 1 by x, so I'll get 1 plus x by 2 factorial plus x square by 3 factorial dot 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 dot. Now if I put limit x tending to 0 for this, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। बाकी तो सारे 0 की तरफ जाएंगे, है कि नहीं? बाकी सारे 0 की तरफ जा रहे हैं ना। सो यही चीज उनके यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, ठीक है। सो इफ यू नो द टेलर सीरीज, then you can easily derive this thing. You need not by heartly learn this things. Okay? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अब जैसे a raised to x है, तो अगर सपोज a raised to x का मुझे टेलर सीरीज निकालना है, हेलो, a raised to x का मुझे अगर टेलर सीरीज निकालना है, so what will I do? What will I do? Let us say a is equal to some e raised to power b, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। Let us say a is equal to some e raised to power b, correct? Yes. है कि नहीं? Now I know a raised to x अगर मुझे suppose so if I have to write the expansion of a raised to power x, this is raised to power e raised to power bx, correct? है कि नहीं? Yes. ये है। अब मुझे अगर सपोज e रेस टू x का सीरीज पता है, तो मुझे e रेस टू bx का सीरीज का क्या है एक्सपेंशन? 1 प्लस bx होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस bx होल क्यूब बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट, ठीक है कि नहीं? हाँ। सो उसके बाद में मैं e रेस टू bx माइनस 1 अपॉन bx इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? 1 प्लस bx अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस bx होल स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है कि नहीं? नाउ दे हैव आस्क्ड अस कि यहाँ पे मैं सिर्फ x कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई कैन मल्टीप्लाई, अगर सपोज मैं bx से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ x से डिवाइड कर रहा हूँ, सो आई कैन मल्टीप्लाई दिस होल टर्म बाय b, राइट? सो आई गेट e रेज़ टू bx minus 1 by x is equal to b plus b square x by 2 factorial plus b cube x square
by 3 factorial and so on. So my limit x tending to 0 is equal to what? Simply b. ये तो सब 0 हो जाएगा ना, ये सब 0 हो जाएगा, है कि नहीं? And what is b? I have written a is equal to e raised to power b. So b is equal to log what? Or natural log a, right? Fine. So the limit is natural log a. So this is how they have derived it. This is how they have derived it. तुमको अगर suppose टेलर सीरीज expansion पता है, then you will be able to easily do it. Okay, you will be able to easily do it. Fine. Yes. Now this is not a greatest integer function. It is simple 1 plus x raised to the power 1 by x. Okay, just take that in mind. ये third वाले जो है ना, this is not a greatest integer function. Okay, this is simple 1 plus x raised to the power 1 by x. तो इसका जो लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 is e. How? That is your homework. Okay, that is your homework. समझ में आया? हाँ. Yes, sir. So I guess we can stop here for now. We can stop here for now. I'm stopping the recording now. So we know that the function f of x is continuous at x is equal to a when limit a tends to limit a minus is equal f of x equal to limit a plus or the right hand limit at of x extending to a plus and this is extending to a minus is equal to f of a. याच्यात काय डाउट आहे? नहीं. याच्यात काय डाउट आहे? इसमें कोई डाउट है नहीं. किसी को? हाँ. नहीं. Okay. So this is basically the limit definition which has to be followed for continuity. Then only we can say that the function is continuous, correct? This is just a revision. We have already studied continuity in the classes. Okay. Yes. Now we have to select the correct answer. Okay. So for the given alternatives, okay, we have to study whether f of x is continuous. For the first problem I'm taking, we have to study whether f of x is continuous at x is equal to pi by 2 or not. Correct? Yes or no? Yes. Okay. So for x is equal to pi by 2, they have given that it is equal to root 2. Okay. For x not equal to pi by 2, for x not equal to pi by 2, they have given that it is 2 raised to cot x minus 1 upon pi minus 2x. Correct? Yes or no? Yes. So I take f of x equal to 2 raised to power cot x minus 1 upon pi minus 2x. Correct? This is the thing. Yes. Okay. So Yes. can I take it as I have to take x is tending to pi by 2. Correct? So let us. Yes. I first take the left hand limit. I take the left hand limit where x is pi by 2 minus h. Yes. Okay, fine. So now I have to find the left hand limit. Okay, so 2 raised to cot pi by 2 minus h minus 1 upon pi minus 2 times pi by 2 minus h. Correct? Yes or no? Yes. So what is cot of pi by 2 minus h? It is tan h. Yes or no? Tan h, right? Yes. Yes. And this is simply pi. Sorry. So this is simply pi. Fine. And denominator में minus 2 pi by 2 plus 2h है. Right? यहाँ पे?
है कि नहीं? हाँ So it becomes numerator is 2 tan h minus 1 upon 2h. Correct? Yes or no? And this is limit yes h tending to 0. Yes or no? ठीक है? yes yes Okay. So this is the left hand limit. Correct? This is the left hand limit or no? yes yes Now, what is, we know that limit h tending to 0, tan h is equal to h. Yes or no? Limit h tending to 0, tan h by h is equal to what? 1, right? This is proven. This is proven. yes So can I substitute h here? Can I substitute h here? Fine. yes So I can Yes. write this as 2 raised to h minus 1 upon 2h limit h tending to 0. yes Correct? Now what is this? 2 raised to h minus 1 upon h. What is this? This limit is log 2. You have to learn this. हमने देखा था ना e raised to x का हमने expansion देखा था. E raised to x is equal to 1 plus x square by 2 factorial. And then let us say हम e की जगह अगर suppose हम लोग a रखते हैं, ठीक है, हम लोग a रखते हैं, so उस फिर हमने a raised to x का भी expansion देखा था, a raised to x का expansion देखा था हमने, है कि नहीं? देखा था कि नहीं देखा था? हाँ देखा था तो फिर उसके बाद हमको क्या मिला था कि हमने ये भी देखा था कि लिमिट, we know that limit extending to 0 e raised to x minus 1 upon x is equal to what? 1, and limit extending to 0 a raised to x minus 1 upon x is equal to what? Is equal to log a. ये तुम्हें याद रखना है यार, मुझे नहीं याद रखना है तुमको. समझे कि नहीं समझे? हाँ हेलो राधा. yes sir Yes, sir. तो याद है कि नहीं याद है, ये बताओ मुझे. याद है क्या? यहाँ पे अब ये क्या रहेगा, तुम्हारा log 2 रहेगा ना कि नहीं रहेगा? हाँ और यहाँ पे हाफ है ना, ये 2 हाफ से मल्टीप्लाइड है, राइट? है कि नहीं? तो इट इज हाँ हाफ इनटू log 2 ना. Yes or no? So it is log yes root 2. So this is the left hand limit. Correct? अब हमको ये देखना है कि राइट हैंड लिमिट क्या आता है. सो राइट हैंड लिमिट अगर हमको देखना है, सो वी नो इट इज 2 raised to cot x minus 1 upon pi minus 2x. I have to substitute x की जगह पे, I have to substitute what? Pi by 2 plus h. Yes or no? हाँ I have to substitute pi by 2 plus Yes. h. So it is 2 cot of pi by 2 plus h minus 1 upon pi minus 2 into pi by 2 plus h. Correct? है कि नहीं? yes Now it becomes 2 raised to what? Minus tan h. Minus tan h or not? This is in the second quadrant. So this second becomes, quadrant yes and this is minus 1 upon minus 2h. Yes or no? yes Correct? Okay. yes So this becomes 1 by 2 raised to power tan h minus 1 upon minus 2h. Correct? Or, yes and this equals 1 minus 2 raised to power tan h. Okay? Upon हाँ 1 by 2 raised to power tan h. Okay? Upon what? 2h into minus 1. हाँ Now this becomes 2 raised to power tan h minus 1 upon 2h into 1 by 2 raised to power tan h.
2 raised to the power tan h, या हाँ ओके। हाँ इसका लिमिट हमारा कितना निकला था, log 2 निकला था। लिमिट हियर एवरीवेयर हाँ लिमिट h is tending to 0, right? Limit h is tending to, यस so this is 0 what, this is हमारे इसका लिमिट log root 2 निकला था, and this is equal to 1, right? 1 by 2 raised to the power very very small value, very small value. So this becomes what? 2 raised to 0 is what? 2 raised to 0 is what? 1 1 ना, तो ये तो 1 ही है हमारा, ये 1 है, and ये हमारा, हाँ so our right hand limit is equal to left hand limit is equal to the value at x is equal to pi by 2. So f of x is continuous at x is equal to pi by 2. ठीक है? यस So now if f of x equal to 1 minus root 2 sin x upon pi minus 4x is continuous at x is equal to pi by 4, then f of pi by 4 equal to, तो ये बोल रहे हैं कि ये continuous है at x is equal to pi by 4, ठीक है? हाँ Then what I have to do is I have to just find one limit. मतलब मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट भी मैंने अगर फाइंड कर लिया, so that is equal to my right hand limit. ये हम like we can definitely say that because उन्होंने बोला है कि x is continuous at pi by 4. यस तो हमें बस हाँ that right hand और left hand limit we have to just equate it with f of pi by 4. ठीक है? That will be Okay. equal to your f of pi by 4. So can I solve this problem now? यस 1 minus root 2 sin x upon what? Pi minus 4x. ठीक है? Hello? हाँ Now let Yes, us, sir. I take the left hand limit only. I take the left hand limit. So I substitute x की जगह पे pi by 4 minus h. I substitute this thing. Correct? Yes. So 1 minus root 2 sin of pi by 4 minus h, fine, upon pi minus 4 times pi by 4 minus h. ठीक है? And here everywhere limit h is tending to 0. Correct? Yes. Okay. So I have to just expand this sin of pi by 4 minus h. Okay. So if I expand it, यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो ये पाई पाई कट जाएगा and I'll be just left with 4h. Okay. And in the numerator I'll be root 2 into sin pi by 4 is 1 by root 2. Okay. Cos h Yes. minus sin h cos pi by 4. Correct? है कि नहीं? And here हाँ I'm just left with 4h. Here everywhere limit h is tending to 0. So here 1 minus क्या मिलता है? root 2. ठीक है? Now what is yes. this value? This is definitely tending to 0. है कि नहीं? ये तो 0 ही हो रहा है ना? Because sin h is very small, right? Or no? हाँ Yes. Or no? बताओ. Okay. Let us do it one way. ठीक है? अब यहाँ पे okay. I'll just erase it once. Okay? Since we have denominator में यहाँ पे h है, right? It is again 0 by 0 form, right? Okay. So it is हाँ what? Sin h and cos pi by 4. ठीक है? Okay. So I get, okay. what do I get here? I get here 1 minus cos h minus sin h or plus sin h whole upon 4h. ठीक है? Hello? Yes, sir. Okay. Now this is equal to 1 minus
So what is 1 minus cos h? 1 minus cos h is 2 sin square h by 2, correct? Yes, correct. And plus sin h upon 4h. This is correct? Yes. Okay. Then I go ahead. Hmm. I write it as 2 sin square h by 2 plus sin h. Sin h है ना पीछे? Sin h. So this upon 4h and this upon 4h. This is equal to Right. tending to 1 by 4, correct? Yes or no? And here Yes. sin square h by 2 upon 2h. So instead of 2h, if I write it as h square by 4, I write it as h square by 4 into what? h by 8. ये समझ में आया मैंने क्यों किया? Because this will actually what? Tend to 1. This will tend to 1. Yes or no? है कि नहीं? Yes. So limit h tending to 0 sin h by 2 upon h by 2 is 1, right? This is 1, right? Correct? Yes. Yes. This is 1. If this is 1, so I have to multiply it by such a way कि यहाँ पे h square by 4 आना चाहिए डिनोमिनेटर में, but मेरे पास 2h है, so I took h above and 8 below, ठीक है, ताकि नीचे 2h ही रहे. Yes or no? So Yes. and this is plus 1 by 4, ठीक है, so it is h by 8 plus 1 by 4. Now since h is tending to 0, this we can take it as 0. Fine. The final answer is 1 by 4. Fine. So f of 5 by 4 is equal to what? 1 by 4. Option D. ठीक है? Yes. I will give you maybe around 10 minutes to solve the third one. It's a very simple problem. It's a very simple problem. So इसमें बस simple identities लगाने हैं. What you can do is you can take 5 minutes and then join back the meeting after 5 minutes. I'm going for a pause. Okay? I'm going for a pause now. You can take 10 minutes and try to solve this third question. Okay? Yes. And ask me if you have any doubts. Okay? Yes. Now you can take 10 minutes and solve this third question. Yes.
हेलो, या एनी अटेम्प्ट, क्या कर पाए इसमें? हेलो, 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 हेलो। So now we are solving this third question here. Okay. The way to solve this question is sin 2x tan 5x upon e raised to 2x minus 1 whole square, and we have to find the limit at x is equal to 0, and that should be equal to your f of 0, right? Again, so I'll just take any one. If I take just the right hand limit, okay, if I take the right hand limit, it will be sine of 2h tan 5h upon e raised to power 2h minus 1 whole square, correct? And here limit, Yes. Okay. and limit h is tending to 0, correct? 0. Yes. So I do sin 2h tan 5h upon e raised to power 2h minus 1, okay, into 2h into 2h upon e raised to power 2h minus 1, correct? Fine. Upon 2h into 2h, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, है कि नहीं? है कि नहीं? This and this becomes 1, this and this becomes 1. Okay. Yes. हाँ कि नहीं? फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है फिर? So sin 2h upon sin 2h into tan 5h upon 2h into 2h, correct? Fine. Yes. I can do 5 into 5. Okay. This becomes 1 again. This becomes 1 again. This becomes 1 again. So we are left with only 5 by 2. Okay. So the answer is D, 5 by 2. कोई डाउट है क्या? सिंपल नहीं था? नहीं, सिंपल नहीं था ये? सिंपल था, फिर सिंपल था. okay, I'm just going to take, there are many problems in this miscellaneous exercise. Let us take one more problem. Can I take the fifth one? Yes. So what is the they are saying that discuss the continuity of the following functions at the points on or in the intervals indicated against them. Okay, so this fifth one, what they have asked us is whether it is continuous at x equal to 1. उन्होंने कोई interval नहीं दिया, right? They have just simply asked whether it is continuous at x equal to 1, correct? X equal to minus 1, x equal to minus 1 पे whether it is continuous or not continuous, correct? तो अभी हमको क्या करना है फिर यहाँ पे? We just have to find the limit. Yes or no? We have to find the limit at x is equal to minus 1. Okay, we have to discuss the continuity, right? Yeah. We have to discuss. मतलब हम ये पता नहीं है कि continuous है या नहीं. They have बस given चेक करना है, मतलब हमको चेक करना है whether it is actually continuous or not. Okay, so my point here is कि यहाँ पे x is equal to minus 1 पे they have given it as 0. So we have to just check whether the left hand limit and the right hand limit are 0 or not. Correct? है कि नहीं? Yes. है ना? ठीक है, तो Yes. यहाँ पे mod of
मॉड ऑफ x प्लस वन है, ठीक है, अपॉन 2x² प्लस x माइनस वन, ये है करेक्ट, यस है कि नहीं? एंड ये यहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है तब होगी जब x इज लेस देन माइनस वन, यस और नो? x इज लेस देन हाँ माइनस, माइनस यस राइट हैंड लिमिट तब होगी जब x इज ग्रेटर देन माइनस वन, राइट? ग्रेटर देन माइनस हाँ, यस तो जब मेरा x इज ग्रेटर देन माइनस वन है तो व्हाट विल दिस फंक्शन बी? तो यहाँ पे सिंपली x प्लस वन ही रहेगा, राइट? वो है कि नहीं? हाँ हाँ है कि नहीं? व्हेन x इज, एंड जब हाँ मेरा x इज लेस देन वन है तब मेरा ये फंक्शन क्या रहेगा? एक्स माइनस 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 एक्स एक्स माइनस माइनस, हाँ है कि नहीं? यस तो मुझे यस उसका कोई साइन चेंज नहीं करना है मुझे. सो लेट अस फर्स्ट टेक द लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट इज माइनस एक्स माइनस वन अपॉन 2x² plus x minus 1, and I substitute x is equal to minus 1 minus h, ठीक है? I substitute x की जगह पे minus 1 minus h, the limit h is tending to 0, right? h is tending to 0. So I substitute minus 1 minus h minus 1 upon 2 into minus 1 minus h whole square plus minus 1 minus h minus 1, ठीक है? कोई डाउट है इसमें? नहीं 1 प्लस एच माइनस वन, ऊपर आया वैसे, ठीक है? और ये 2 इंटू 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, माइनस एच माइनस वन, एंड दिस इज अगेन माइनस वन, ठीक है? माइनस वन माइनस एच, यहाँ पे ऐसा रहेगा, करेक्ट? हाँ सो ऊपर सिर्फ मेरे पास आता है, ऊपर से मेरे पास h बचता है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बच रहा है? 4h प्लस 2h² माइनस एच, ये माइनस वन और ये 2 मैं कैंसिल पकड़ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है हाँ तो सो दिस बिकम्स 4h प्लस h² माइनस h, ठीक है, इज इक्वल टू h इंटू h अपॉन dh प्लस h². कितना हो रहा है मेरे पास में? कैन आई कैंसिल द h? आई कैन राइट हियर, यस ओके फाइन. यस So here everywhere limit h is tending to 0, right? Limit h is tending to 0. Limit h is tending to 0. फिर क्या बचा? 1/3 आ रहा है ना? So whether it is continuous or not continuous? हाँ नहीं है continuous. Because the limit is itself, left hand limit is also not matching, right? है कि नहीं? यस तो वो continuous नहीं है. Okay? Simply. मतलब अगर सपोज लिमिट मैच होता, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से मैच हो जाता, देन आई वुड हैव कंसीडर्ड कि राइट हैंड लिमिट चेक करूं मैं, बट लेफ्ट हैंड लिमिट ही मैच नहीं हो रहा है ना मेरा. सो आई थिंक वी हैव लाइक मोस्टली you know checked most of the type of problems here for continuity. Okay, there are types of problems to find the value of k here. Can you solve this part? 9th वाला प्रॉब्लम कर सकते हो तुम? राधा, हाँ ट्राई ट्राई कर सकते. हाँ करो ट्राई. You have 10 more minutes to try that question. I am muting myself, okay? Or don't try for 10 minutes, try for only 5 minutes, and after 5 minutes you ping me. I am here only, okay? यस
हेलो हेलो। 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 हाँ, कर पाए? कर रहा हूँ सर अभी भी। क्या क्या? हाँ, मतलब कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। ओके। ओके, just sharing it now here. You can see the screen. 4 plus 5x x to the power 4 by x upon what? 1 4 minus 7x 4 minus 7x raised to the power. This is हाँ। also 4 by x, right? On this or this यस। equal to 4 by x. Let us say this limit is let us say this equal to some k here. Okay, so everything is k here. Fine. यस। So here we have now limit extending to 0 for this function, it is equal to k. Fine. तो डाउट है इसमें? मैंने ऐसा लिया इसको, नहीं। ठीक है? हाँ। Now I take log on both the sides. Okay, I take log on both the sides. So I get 4 by x outside. I take 4 plus 5x, okay, upon 4 minus 7x is equal to log k. And here still limit x is tending to 0. Fine. यस। Okay. So I get 4 by x log of 4 plus 5x, okay, minus 4 by यस। x log of 4 minus 7x. So log of a by b is log a minus log b, right? And this 4 by x is multiplied with this complete term, right? So इसलिए मुझे ये ऐसा हाँ। ऐसा किया मैंने, ठीक है? ठीक है। Before that, हाँ। before that, I can do one more thing here. मैं यहाँ पे I'm just erasing this last step here, okay? Just erasing this last step here. यहाँ पे मैं इधर पे ये 4 है, ठीक है? So can I write it as 4 by x log 1 plus 5x by 4 upon 1 minus 7x by 4? Can I do that? मतलब 4 बाहर कॉमन ले लिया क्या? और मैंने कॉमन ले लिया, हाँ। ठीक है? अच्छा हाँ।